Yes. So I said that why N2 exists in this diatomic form, whereas phosphorus does not. You will never find P2. You will find P4. Okay. So this is your N2 and this is your P4. What happens with nitrogen is that with two nitrogen molecules, their size is small. Okay. So one bond which is formed between them is they have five valence electrons. Okay, let me draw it this way. They have five valence electrons. Okay, so when bonding happens here, one of this lone pair is going to bond, not lone pair, one of the electron is going to form the bond with this another electron. Now what happens with rest of the electrons? Always whenever there is a multiple bond, okay, then this lead to the sideways overlapping, like this. They overlap in this particular manner. Okay, and here the overlapping is like this. So I will tell you about the overlapping in this case. So since the size is small, so they are quite close to each other, so sideways overlapping is possible. But in the case of phosphorus, what happens, they have a large size as compared to nitrogen. So this kind of bonding in phosphorus is not possible because it's a bigger in size. These orbitals are quite away from each other. So when they are quite away from each other, there is no overlapping, and when there is no overlapping, that means no bond formation will take place. Okay, so if I take this P and P here and try to do this sideways overlapping, although phosphorus just comes behind, not behind, below nitrogen, still it is not going to form these kind of overlapping. So due to which they, to complete their to make the compound stable, they form the bond in this particular manner. So phosphorus exists in this particular way. Got it? And each phosphorus will have one lone pair present on them. And this is your tetra atomic. That means you have four atoms. So this is tetra atomic molecule. Okay, so you can write down here, due to large size, sideways overlapping is not possible. Write down this. Now, next small topic is your atomicity. This you have studied in class 10th also. Okay, so atomicity is the number of atoms in a molecule, and how many atoms a molecule has of an element. So if I am talking about N2, that means its atomicity is equal to 2. That means this one molecule of nitrogen has two atoms of nitrogen. If I am writing P4, okay, or this is your nitrogen family, okay, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, Sb. All these lead to the formation of Sb4, As4, P4. They do not form P2, As2, or Sb2 because their size is continuously increasing, and when size is increasing, the sideways overlapping is not possible. So for all these three molecules, atomicity will be equal to 4. This is at, we are talking about at room temperature. If temperature increases or decreases, conditions can be different.
but here we are talking about in normal conditions, that is room temperature. Okay, so here we have to first understand little bit a concept of sigma bond and your pi bond. Okay, so let's talk about sigma bond. What is a sigma bond? Sigma bond is formed by single lobe interaction, but pi bond is formed by sideways overlapping. That is by double lobe interaction. Okay, so sigma bond, there are two types of bond which will come under covalent bond. One is your sigma bond and one is your pi bond. Okay, so this is sigma. Now I am saying that this is formed by single lobe. We know that p orbital is drawn like this. This is one lobe, this is another lobe. For s it has a single lobe. For d it has these four lobes. Okay, so this sigma bond Okay, someone became Abhilash. You became the host. Please make me the host. Okay. Okay. Fine. Thank you. So as I was saying, if single lobe overlapping is there, it forms the sigma bond. If two lobes are overlapping simultaneously, then it forms the pi bond. And this p orbital can also show single lobe overlapping like this. Then this is also a type of sigma bond. Okay, we'll talk about this in detail later on. Now again, one question arises here is, why does oxygen exist as diatomic form and sulfur exists as octaatomic form? That means sulfur exists as S8. What will be your reason? Same reason as nitrogen and phosphorus. Yes, same reason, that sulfur is bigger in size. So your this overlapping is not possible because orbitals are quite away from each other. So you have to write down here, due to bigger size of sulfur, overlapping, that means pi overlapping, is not possible.
So for that matter, oxygen exists like this, okay, and sulfur actually exists in this form. There is one more reason here, I will tell you that also. This is the crown shape of sulfur. Write down this. Few points which you should know whenever you see a multiple bond. So that means multiple means more than one bond. In a multiple bond between non-metals, which is usually non-metals here, O, sulfur, sulfur, these are all non-metals. So between non-metals, usually, okay, so in a multiple bond between non-metals, one bond is sigma bond. Okay, so if it is a single bond, it will always be sigma bond. And if it is a multiple bond, so then one will be sigma and rest of the bonds will be pi. Okay, for example, if I am taking O2, that means one will be sigma, another one will be pi. If I am taking N2, that means one is definitely sigma. Okay, rest two, these two are going to be pi. So there is always one sigma bond between two atoms, and rest, if there is a multiple bond, they will be called as pi bond. Next point is similar to the first one only. Multiple bond cannot have more than one sigma bond and more than two pi bond. So whenever there is a multiple bond, one is for sure sigma, but it can never more than one bond can never be the sigma bond. ओके, एक से ज़्यादा कभी भी सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. और अगर आपके पास पाई बॉन्ड भी बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 पाई बॉन्ड बना दो, 5 पाई बॉन्ड बना दो, नहीं. पाई बॉन्ड भी सिर्फ मैक्स टू मैक्स दो एटम्स के बीच में दो ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. ओके, थर्ड पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड cannot have more than three covalent bond. Okay, so this sigma bond and pi bond, sigma and pi, these both are a type of covalent bonds. Both are covalent bonds only. Okay, so between two atoms, you can never find that more than three covalent bonds are there. You will always find like nitrogen and triple bond N. Okay, you cannot form carbon four bonds with carbon. This type of compound is not possible. You can never have four multiple bonds. Max to max you can go for three multiple bonds. Okay, just write down a note here. In some metals, up to four multiple bond may be present. So here we are talking about non-metals only, but there might be some metals जहाँ पे four तक bond बन जाता है. ठीक है, and that is we'll talk about it later on. And fourth point is
एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल के पास एक ही लोब होता है, तो कभी भी वो साइमल्टेनियसली दो लोब में ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकता। तो एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, नेवर पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं सकता बिकॉज इट हैज वन सिंगल लोब, नॉट टू लोब्स। तो वही ऑर्बिटल्स जिनके पास टू लोब्स हैं दे कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो वो कौन कौन से आ गए? एक तो पी ऑर्बिटल हो सकता है और डी ऑर्बिटल हो सकता है। राइट डाउन दिस। नेक्स्ट पॉइंट, s orbital does not participate in bonding when p orbital is present. So if p orbital is present, then s will not participate in the bonding. The reason is that सबसे पहले s आता है, फिर p आता है, फिर d आता है। तो अगर p बाहर की तरफ है और s अंदर की तरफ है तो बॉन्डिंग कौन करेगा? वही जो बाहर की तरफ होंगे ऑर्बिटल्स, क्योंकि अंदर की तरफ जो है वहां पे तो ओवरलैपिंग पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। सो विच आर प्रेजेंट एट द आउटर साइड ऑफ द एटम, दे विल बी मोर efficient in overlapping as compared to the inner orbitals. तो इसलिए अगर p orbital खाली पड़ा हुआ है वहां पे बॉन्डिंग होने के चांसेस है, तो s orbital will never participate in the bonding. Okay, you can write down here as p is outside, so it will combine first. तो वो पहले कंबाइन करेगा। Write down this. Okay, now let's take one example where I have Re, Re, this is a metal, okay, and it has the chlorine attached like this. This is also, okay. So in this case, chlorine is giving both of its lone pair to the metal. This is Cl minus. So they are giving their electrons to chlorine, sorry, to Re, that is metal. Same is the case here also. These are Cl minus ion. They are giving their whole one lone pair to this Re. And this Re is joined with each other. Re is a metal. So this is some special examples where you will find four bonding here. Okay. This is no, this type of bond is known as quadruple bond. That means four bond. तो इसमें एक सिग्मा होगा, ओके, बाकी दो पाई होंगे। आपको ये बोला कि दो से ज्यादा पाई नहीं हो सकते, तो जो बचा हुआ फोर्थ आप
Okay, thank you so much, Abhilash. Okay, so as I was saying, that here we have this Re and this Re, they are forming the bond. This is a quadruple kind of a bond, four bond. These are some special examples where you will observe that four bonds are possible. Other than that, if the bond is formed between two non-metals, they will never have more than three bonds. And out of those three bonds, one will for sure be sigma, and whatever the rest number of bonds are there, whether it is one or whether it is two, they will be pi bond. And this kind of bond where chlorine is just giving its lone pairs to this metal, this type of bond is known as coordinate bond or dative bond, and they are considered as sigma bond only. Okay, write down this, draw this diagram. Last point, I am saying that suppose there is a bond A and B. Let's say A has a lone pair and B has a positive charge. That means it needs electron, some, let's say two positive charge. And this A gives both of its electrons to B. Okay, both of its electrons it to B. Then this kind of bond is known as coordinate bond. Bond is there, although it has given both of its electrons to the metal, to this another atom, but still bond is there in between them. So this is known as coordinate bond. Okay, and this coordinate bond is nothing but it is a type of sigma bond only. No pi, no delta, it is called sigma bond only. Now is it clear? Okay, draw this diagram. Okay, now let's talk about Lewis acid. Okay, what are Lewis acid? Okay, species in which positively charged atom, usually central atom, is having one or more vacant orbital, and they can accept electron pair, or you can, electron pair is called as lone pair also, from other species. Other species, that means Lewis base. Then they are called as Lewis acid. Okay, so all those species which have the vacant orbital to accept the electrons. Okay, आपने एसिड्स का डेफिनेशन भी पढ़ा होगा. अकॉर्डिंग टू ल्यूइस, दो स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. तो एक्सेप्ट कहाँ करेगा, उसके पास जगह भी तो होना चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा. तो वो सारे स्पीशीज जिनके पास खाली जगह प्रेजेंट होती है सो दैट दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड एज ल्यूइस एसिड. एंड ऑल दो स्पीशीज विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज ल्यूइस bases. अभी अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल H plus ion can be your Lewis acid, Na plus, K plus, calcium plus 2, BeX2. BeX2 मैंने आपको बताया था वेकेंट जगह खाली पड़ी होती है ना. Then BX3, X can be your anything, okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine.
AlX3, एल्यूमिनियम के साथ X हो सकता है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, POH whole thrice. We will talk about all these things. SiX4, PCl5, SF4 etc. इन सबके पास क्या है, खाली जगह प्रेजेंट है. अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक हाइपोवैलेंट की डेफिनेशन बताई थी, है ना, हाइपोवैलेंट स्पीशीज. सो क्या हाइपोवैलेंट स्पीशीज विल बी अ टाइप ऑफ ल्यूइस एसिड और नॉट? Will they be a type of Lewis acid or not? Yes, क्योंकि हाइपोवेलेंट का डेफिनेशन ही क्या बताया था, दे हैव द वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन देम. ओके, all hypovalent are Lewis acids. Write down this. Then there is a definition of Lewis base. For Lewis base, write down electron rich species. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मतलब ऑफ कोर्स जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो. सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज in which negatively charged atoms which have extra electrons to donate और lone pairs. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है, और लोन पेयर्स टू डोनेट टू अ central atom are known as Lewis base. Understood? एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स या तो उनके पास लोन पेयर होना चाहिए. जैसे मैं अमोनिया ले लूँ NH3, तो आपको पता है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है. पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें. दिस कैन एक्ट एज अ ल्यूइस बेस. PH3 हम ले सकते हैं, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फॉस्फोरस. ओके, H2O ले सकते हैं क्योंकि वाटर के पास भी दो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है. H माइनस ले लो, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. OH माइनस ले लो, माइनस चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. और यू कैन टेक X माइनस. X माइनस में क्या क्या आ जाएगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस. All these can act as your Lewis base because they can donate the electrons. Got it? अब हम जैसे थोड़ा सा ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस के अगर हम रिएक्शंस देखना चाहें. ओके, सो interaction of Lewis acid and Lewis base. Okay, there is one thing I want to say. Whoever is friend with Joel, है ना? Whoever is friend with Joel, tell him that he is, of course, he is not listening to the class because उसने अपना audio disconnect करके रखा हुआ है. He has just he's just there in the class. Audio वगैरह सिर्फ screen दिख रहा होगा. He is unable to hear anything. So tell him that he has. I will talk to his parents today. So whoever is friend with him, because I know this. He might not. He is not listening to this also. Whatever I am saying. So inform him. Fine. So not all electronegative, but sort of if they have extra electrons लिख दो, of course they will act as a Lewis base. ठीक है, चलो अब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं. मेरे पास यहाँ पे अमोनिया है
ओके, एंड हियर आपको पता है कि अमोनिया पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ओके, मैं ले रही हूँ यहाँ पे BF3 बोरॉन। अगर हम बोरॉन की बात करें, 5 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p1। तो ये जो p ऑर्बिटल है, एक में इलेक्ट्रॉन है, ये खाली पड़े हुए हैं, तो इट हैज सेम एनर्जी लेवल पे, ठीक है, उसके पास जगह खाली है, तो वो किसकी तरह वेकेंट ऑर्बिटल है। तो इसलिए आपको ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। दिस कैन एक्ट एज एन एसिड बिकॉज इट हैज द वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन इट। तो इट हैज द वेकेंट ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ओके, अभी तक नाइट्रोजन न्यूट्रल था, जैसे ही नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे, तो एक तो खुद के पास रखा और दूसरा बोरॉन को दे दिया। बोरॉन का यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो एक खुद का भी था, यहाँ पे एक खुद का भी इलेक्ट्रॉन था, ये पेयर्ड हो गया, और 3 क्या प्रेजेंट है इसके पास, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो पॉजिटिव चार्ज। बोरॉन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो हम इसको इस तरीके से अलग से इलेक्ट्रॉन शो करते नहीं है, बिकॉज वो तो बॉन्डिंग में ही चला गया ना, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो बॉन्ड फॉर्म करने लग गया। तो बी पे नेगेटिव हम बता देते हैं, नाइट्रोजन पे क्या पॉजिटिव बता देते हैं, क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड किस टाइप का होगा, सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आई, क्लियर है। तो दिस इज योर Lewis base and this is your Lewis acid. दिस इज योर लोन पेयर, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज। हाइड्रोजन बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उससे हट किसी ने ले लिया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज हो गया। तो ऑब्वियसली उसके पास एक जगह खाली है, तो नाइट्रोजन क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को दे दिया, तो एक तो ये रहा, खुद के पास रखा एक, और एक हाइड्रोजन को दिया, तो नॉट एग्जैक्टली कंप्लीट डोनेशन, बट शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन को देने के बाद, तो आप थोड़ा सा ऐसे एरो भी दिखा सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दिए हुए, तो हाइड्रोजन तो पहले से पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो न्यूट्रल हो गया यहाँ पे, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। बट नाइट्रोजन पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। गॉट इट। तो ये सब के सब आपके पास किस टाइप के बॉन्ड हो जाएंगे, ऑल दीज आर योर सिग्मा बॉन्ड्स। ड्रॉ दिस। अच्छा, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, मान लो दिस इज 1 2 3 और ये फोर्थ वन, 1 2 3 एंड फोर्थ। तो टेल मी, क्या बॉन्ड लेंथ में कुछ डिफरेंस आएगा या फिर बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा। बॉन्ड लेंथ विल बी सेम और डिफरेंट। सो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड आउट दैट कि जो चारों के चारों बॉन्ड लेंथ है, उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, बिकॉज बॉन्ड एक ही जैसे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ओके, और नाइट्रोजन ने प्लस चार्ज ले लिया, बट बॉन्ड तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ही है ना, और सारे बॉन्ड सेम ही टाइप के हो जाएंगे। सो एक्चुअली all the bond lengths are same here, and this is experimentally observed, experimentally भी verify किया गया है। लिखो यहाँ पे,
अच्छा, अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना? तो अब नाइट्रोजन एक वो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है अपने पास, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट आपने उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, तो क्या वो पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा? क्या उसको पॉजिटिव चार्ज अच्छा लग रहा है अपने पास? नहीं। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको भाई चाहिए इलेक्ट्रॉन। तुमने जबरदस्ती हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था और हाइड्रोजन बहुत भीख मांग रहा था, दे दो दे दो दे दो मेरे को, तो नाइट्रोजन ठीक है थोड़ा बहुत दुखी हो गए, चल ठीक है दे देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ने दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन, बट ही इज नॉट हैप्पी। तो जब उसका मन करेगा वो बोलेगा कि वापस से मुझे अपना इलेक्ट्रॉन वापस दो। तो इसीलिए ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, सो इट हैज द टेंडेंसी टू गो बैक टूवर्ड्स व्हाट दे ओरिजिनली वो। तो ये रिएक्शन जो है बैक एंड फोर्थ चलती रहेगी। ओके, सो लिखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑन more electronegative atom makes it unstable. So it can again break the bond, and the reaction may go back and forth. ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। ये जो NH4 प्लस बना हमारे पास, दिस इज नोन एज अमोनियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल विच वी कैन टेक इज फॉर वाटर। हमें पता है कि वाटर H2O होता है और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना? कैसे प्रेजेंट होते हैं देखो, 1s2 2s2 2p4, नो नो 2p2 सॉरी 2p2। तो ये इसके वैलेंस हो गए, 8 होता है ना, 1s2 2s2, अच्छा 4 ही था, ठीक है 4। तो अब अगर मैं देखूं, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। तो ये तो लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, और दो अनपेयर्ड थे। दो अनपेयर्ड ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो वैलेंस पे कितने लोन पेयर बचे? दो लोन पेयर बचे। ये सब छोटा मोटा चीजें जो है यू शुड नो। ओके, अब ये अगर H प्लस आयन के साथ रिएक्शन करे, अगेन H प्लस आयन खाली वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ये ल्यूविस एसिड हो गया, और इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये ल्यूविस बेस की तरह काम करेगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन को डोनेट करेगा। दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H H H। एक इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है और दूसरे ने तो बॉन्ड कर लिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। समझ में आया? यहाँ पे भी सारे के सारे बॉन्ड लेंथ्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। फाइन। अगेन ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा पॉजिटिव चार्ज रखने का। तो अगेन ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है। दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जो आयन आपने फॉर्म किया है, दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। ओके, अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ, अभी भी ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या एक और हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर देके ये ये फॉर्म कर सकता है क्या? अब दो प्लस चार्ज हो जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दे दिया। कैन दिस ऑक्सीजन कैन डू दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग हियर? इज इट पॉसिबल? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है।
ओके अनन्या योर राइट, स्निग्धो योर रॉन्ग। उसके अलावा क्या लगता हो, बाकी किसी को कुछ नहीं लगता? बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं क्लास में? हाँ, यशिका, जैन, सुहास, कौन आंसर करेगा? शंकर, श्रीकर, लोहित, रेणुका, रेशमा, टेरेंस, ध्रुव। व्हाट विल हैपन? इज इट पॉसिबल और नो? यस, इट इज नॉट पॉसिबल। भाई ऑक्सीजन एक ही पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना चाहता है। ओके, वो उसमें ही उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्या वो दो पॉजिटिव चार्ज कभी ले पाएगा? नहीं। ठीक है, तो H4O+2 इस टाइप का कंपाउंड कभी नहीं बनेगा, और H3O+ फिर भी बन सकता है, दिस कैन बी फॉर्म, बट ये कभी नहीं बनेगा। तो जैसे आपके मन में कभी कभी क्वेश्चन आता होगा कि यही कंपाउंड क्यों बन रहा है, वह ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, तो हर एक कंपाउंड के एग्जिस्ट करने का कुछ ना कुछ लॉजिक है। आप ऑक्सीजन नहीं रख सकता दो प्लस चार्ज, तो H4O+2 कभी फॉर्म नहीं होगा। समझ आया? सो सिंपल चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे, चाहे तो नोट डाल के लिख लो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है हमेशा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है अपने पास। आप उसको जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज देना चाहेगा। और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव में कौन से आएंगे? मेटल्स। तो उस पे नेगेटिव चार्ज इज अनस्टेबल, वो नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, वो पॉजिटिव रखना चाहेगा। सो पॉजिटिव इज अनस्टेबल बट नेगेटिव इज नेगेटिव चार्ज स्टेबल, एंड हियर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। तभी आपने कभी Na- नहीं देखा है, ओनली Na+ देखा है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है, वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। इट विल नेवर फॉर्म Na-, इट विल ऑलवेज फॉर्म Na+, क्योंकि वो उस पर अनस्टेबल होता है। अच्छा, next is if I have BOH whole thrice. Okay, this is known as boric acid. इसका नाम है बोरिक एसिड। तो अब ये बताओ, BOH whole thrice, नाम पे मत जाना, नाम डिफरेंट, नाम थोड़े वेरी भी कर सकते हैं, आई विल टेल यू लेटर ऑन। ये एसिड की तरह काम करेगा या बेस की तरह काम करेगा? जैसे हम NaOH बनाते हैं, NaOH तो हमको पता है बेस है, Na+OH-। तो ये BOH whole thrice जो है, it can act as a acid or it can act as a base. Tell me. Okay, so this BOH whole thrice, it acts as an acid. ठीक है, ये एसिड की तरह काम करता है, ना कि बेस की तरह, क्योंकि जैसे ही हम इसमें OH लिखा हुआ देख लेते हैं, तो हमको इंस्टेंटली लग जाता है कि इसमें OH प्रेजेंट है, ये बेस होगा, है ना। बट BOH का अगर मैं होल थ्राइस, मतलब अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, OH OH एंड OH, यही होगा। अब ये B क्या है? बोरॉन है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, है ना। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आएगा। इस ये ग्राउंड स्टेट हो गया। तो ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें, तो बोरॉन को तो एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए था, बिकॉज एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है, तो आपको बताया था लास्ट क्लास में, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, तो एक यहाँ पे और एक ये यहाँ पे, तभी तो ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है ना OH के साथ, अदरवाइज बॉन्ड कैसे फॉर्म कर पाता? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता तो बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होता। इस लेकिन अभी भी बोरॉन के पास में एक ऑर्बिटल खाली है, 2p का एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये दिखने में लगता है बेस है, बट ये बेस होता नहीं है। तो जब आप इसको पानी के साथ रिएक्शन कराते हो, ओके, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मतलब H3O+ भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। तो इस केस में जो वाटर है, ये H+ और OH- के फॉर्म में ब्रेक होगा।
और क्योंकि बोरॉन के पास खाली जगह है तो उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किसके पास है, OH माइनस के पास। तो OH माइनस पहुंच जाता है इस बोरॉन के पास, एंड बोरॉन हैज 4 OH माइनस नाउ। और क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो खुद के पास आ जाएगा माइनस चार्ज। सो दिस इज नोन एज योर बोरेट आयन। नेगेटिव चार्ज है ना, बोरेट आयन। ओके, एंड दिस बोरिक एसिड इज एक्चुअली एन एसिड, और इसीलिए बोरिक एसिड को कई बार H3BO3 के फॉर्म में भी लिखा जाता है। इज इट क्लियर? अब क्योंकि इसने OH माइनस एक्सेप्ट कर लिया है तो रिलीज क्या कर रहा है, पानी से H प्लस आयन। देयरफॉर ये H प्लस आयन रिलीज तो कर रहा है, बट H प्लस आयन रिलीज पानी की वजह से हो रहा है। तो ये जो एसिड है इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूइस एसिड, नॉट एन एरिहीनियस एसिड। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करो। डन राइटिंग? So I hope you have a better idea of Lewis acids and Lewis bases now. Now we will be talking about types of Lewis acid. Okay. सबसे पहला टाइप जो है that is compound having central atom with incomplete octet. अगर किसी स्पीशीज का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे इट विल एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो खाली जगह जरूर प्रेजेंट होगी, और खाली जगह अगर प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सा आ सकते हैं, एक तो बेरिलियम आ सकता है, BeX2। एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, बोरॉन X3 भी हो सकता है, अगेन एक्स कैन बी एनीथिंग। एल्यूमिनियम X3 भी हो सकता है, देन BOH होल थ्राइस भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी आपको ऊपर बताया बोरॉन के पास खाली जगह प्रेजेंट है। सो ऑल दीज स्पीशीज जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है दे कैन एक्ट एज एन ल्यूइस एसिड। अगर मैं ले लूँ, लेट्स से आई हैव BF, ठीक है, और यहाँ से मान लो एक और मेरे पास F माइनस है, ये तो ल्यूइस एसिड हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ल्यूइस बेस, क्योंकि इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, और इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन। ओके फाइन। अब अगर मान लो इसी पे मेरे पास ये मैं एक्स कर रही हूँ, एक्स कैन बी एनीथिंग, और इंस्टेड ऑफ F माइनस लेट्स से आई एम एडिंग Cl माइनस, Cl माइनस में ऐड कर रही हूँ, तो ये फॉर्म कर लेगा B, यहाँ पे X, X और X और एक Cl आ गया। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? Cl की जगह मैं F ही कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं सॉरी, एक्स ही कर रही हूँ मैं, और एक्स जो है सेकंड वाले केस में फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है?
क्या लगता है, क्या रीज़न है? अगर पॉसिबल है तो क्या रीज़न है, नहीं पॉसिबल है तो क्या रीज़न है? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है? पहली बात तो मैंने बोला, अगर मैंने एफ फ्लो एक्स में मैंने अगर फ्लोरीन लिया हुआ है तो वो इजीली एक्सेप्ट कर ले रहा है, बट उसके अलावा अगर मैंने कुछ लिया हुआ है तो वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन का साइज तो है छोटा, तो इतना इशू नहीं है, उसको जगह मिल जाएगी। बट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के साइज होते हैं बड़े। तो ऑल्दो उसके पास खाली जगह तो है, वो रख सकता है, बट जैसे ही बोरॉन के आसपास इतने बड़े बड़े एटम्स अगर लग जाएंगे तो क्या उनको जगह प्रॉपरली मिल पाएगी अच्छे से? नहीं मिल पाएगी, दे विल बी फाइटिंग विद ईच अदर। इस टाइप को हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। तो यहाँ पे इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, इनको जगह मिल ही नहीं पा रही है। तो ऑल्दो दे आर ल्यूइस एसिड, बट दे स्टिल कांट एक्सेप्ट द लोन पेयर्स फ्रॉम अनदर हैलोजन। एक्स की बात कर रही हूँ, किसी और से एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई और छोटा होगा तो हो सकता है, वो पॉसिबल है। बट अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है यहाँ पे एक्स, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि जगह नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, ड्यू टू steric reasons between large size halogen atom, they will not form BX4 माइनस। ठीक है, ये फॉर्म नहीं कर पाएंगे, और X क्या होना चाहिए, ये। बट फ्लोरीन होगा तो कर जाएगा। राइट डाउन दिस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो कि अब ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें थोड़ी पता है कि कब स्टेरिक लगेगा, कब स्टेरिक नहीं लगेगा। तो स्टेरिक फैक्टर मोस्टली तब लगता है जब एक छोटा आयन जो होता है वो बिगर अनायन से सराउंडेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, स्टेरिक इफेक्ट इज ओनली व्हेन स्मॉल साइज is surrounded by large size atom। सो इसीलिए अगर मैं अभिलाष हेल्प मी आउट। ओके, थैंक यू। फाइन। सो AL-X4 की बात करूं तो क्या AL-X4 एग्जिस्ट करेगा? यस, AL4 एग्जिस्ट, बिकॉज बोरॉन के कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम का साइज, तो उसके आसपास चार भी हैलोजन चल जाएंगे, बट बोरॉन काफी छोटा है साइज में। तो जब ये छोटा सा साइज है और इसके यहाँ पे मैं से बड़े बड़े ये ग्रुप लगाना चाहूँ, तो इन सब में क्या होगा, रिपल्शन होगा।
बट अगर यहाँ पे साइज बड़ा है थोड़ा सा, तो हैलोजन आराम से उनको जगह मिल जाएगी रहने के लिए, रिपल्शन थोड़ा कम होगा. ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ Lewis acid. Second type of Lewis acid is compound having central atom with vacant d orbital. तो अभी तक हमने जो भी ऊपर देखा, तो इन सब में एल्यूमिनियम ले लो एग्जाम्पल, बेरिलियम ले लो, बोरॉन ले लो, इन सब में जो वेकेंट ऑर्बिटल था वो p ऑर्बिटल था. अभी वो सारे स्पीशीज आएंगे जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल होगा आपके पास d. ठीक है, जैसे हो गया सिलिकॉन X4. ठीक है, X ऑब्वियसली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है. देन PF5 फॉस्फोरस के साथ, PCl5, ICl3. ओके, IF3, ये आयोडीन और लाइक दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. थोड़ा नया लग रहा होगा अभी, माइट बी. देन IF6, इवन IF7 भी बन जाता है विद अ नेगेटिव चार्ज. देन XeF2, ये सारे भी कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेगा, XeF4 एटसेट्रा. तो ये सारे स्पीशीज में क्या प्रेजेंट होता है, यू विल हैव वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट इन देम. अब आयोडीन से फ्लोरीन के साथ ही ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, आप देख लो, और क्लोरीन के साथ भी फॉर्म कर रहा है, तो 3 ही बना रहा है. बट ICl6 फॉर्म नहीं होता. अगर मैं ICl6 बनाना चाहूँ, ICl5 बनाना चाहूँ, या PCl7 बनाना चाहूँ, PCl5 था, मैं PCl7 बना लूँ. ओके, सो दीज नेवर एग्जिस्ट. ये नहीं एग्जिस्ट करते बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, लार्ज साइज. जेनॉन भी है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है, बाकियों के साथ इतना एफिशिएंटली बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है. एंड द रीजन इज सेम, दैट साइज बहुत ज़्यादा है, तो उसके आसपास वो प्रॉपरली नहीं रह पाते हैं, जगह नहीं मिलती है उनको, एंड दे फील द स्टेरिक हिंड्रेंस. राइट डाउन दिस. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. अगर मैं सिलिकॉन ले लूँ, सिलिकॉन SiF4 बहुत अच्छे से बनता है. ओके, और इसमें अगर मैं 2 फ्लोरीन और दे दूँ, 2F-, तो सिलिकॉन जो है वो इस तरीके से 6 फ्लोरीन हो जाएंगे अब उसके पास, और ये ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, क्योंकि सेम रीजन, फ्लोरीन का साइज जो है वो बहुत छोटा है. सो दिस कैन इजिली एग्जिस्ट. सिलिकॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2- लगा दो. बट ऐसे ही अगर मैं फ्लोरीन की जगह कुछ और रख लूँ, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो मैं X की तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, और X यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन. अगर मैं यहाँ पे 2X माइनस करूँ, तो ये SiX6 2- फॉर्म नहीं करेगा. रीजन सेम, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. राइट ऑन दिस. एक और एग्जांपल देख सकते हैं हमारे पास इसमें, PCl5. तो ये PCl5 में अगर आप इसको क्लोरीन दे दो, सिर्फ एक क्लोरीन, तो वो पॉसिबल है, और ये फॉर्म कर लेगा PCl6, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉस्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. बट अगर यहाँ पे मेरे पास PBr5 हो,
या Pi5 हो और उसको मैं X माइनस दे रही हूँ, X यहाँ पे होगा ब्रोमीन और आयोडीन, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. दिस विल नेवर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Px6 माइनस, अगेन ड्यू टू steric hindrance. तो आपसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता है. अच्छा, PCl5 अगर PCl6 एग्जिस्ट करता है तो ऑफकोर्स PF5 भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, PF6 माइनस भी कर जाएगा. तो आप ये बोल सकते हो कि PF6 माइनस एंड PCl6 माइनस कैन एग्जिस्ट, बट PBr6 minus and Pi6 minus cannot. Write down this. Done writing? Okay. Now third types of Lewis acid can be your cations of SNP and D block elements, can also act as Lewis acids. तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज है, कटायन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कोर्स इट कैन एक्ट एज ल्यूइस एसिड. तो आप एग्जांपल में ले सकते हो H प्लस, Na प्लस, K प्लस, Mg+2, एल्यूमिनियम +3, Pb+2, Zn+2, Fe+2, copper+2, etc. All these can act as Lewis acid. फॉर एग्जाम्पल, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट जो है वो कौन से कलर, उसके क्रिस्टल्स कौन से कलर के होते हैं. व्हाट इज द कलर ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? यस, ब्लू. गुड, है ना, ब्लू विट्रियोल. यस, गुड. सो वो ब्लू कलर किसकी वजह से आता है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4. CuSO4 मतलब कॉपर +2 और SO4 2 माइनस. तो ये जो कॉपर +2 है उसको जब आप पानी में मिक्स करते हो, ओके, तो 4 मोल्स ऑफ वाटर के साथ ये कंबाइन करेगा. ओके, बेसिकली 4 नहीं, 5 मोल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके, वाटर क्या है, लोन पेयर्स है इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये ल्यूइस एसिड और ये ल्यूइस बेस की तरह काम करते हैं. ओके, तो जो कॉपर है इट इज गोइंग टू फॉर्म और इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट लोन पेयर्स फ्रॉम वाटर. इस तरीके से वाटर से लोन पेयर ये एक्सेप्ट करता है. और इसी वाटर की वजह से, अभी आपने पढ़ा होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पढ़ा था, बिकॉज यही वाटर रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ वहाँ कुछ हो जाए ना, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है, तभी वहाँ पे कलर होने के चांसेस है. तो यही जो आपने देखा होगा, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट. इसको बोल सकते हो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स. और रियलिटी में एक्चुअली ये थोड़ा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. कॉपर 4 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रहता है और SO4 बाहर
और साथ में H2 अलग से। इस टाइप के का जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज नोन एज योर copper sulfate का crystallization, or in other form you can also write down CuSO4.5H2. In the simpler form you can write it in this particular way. Got it? और जो ब्लू कलर है इसका वो किसकी वजह से आ रहा है? ब्लू कलर ऑफ vitriol is due to having CuH2O whole 4 2 plus complex cation. इसकी वजह से ब्लू कलर आता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए होते हैं, और कभी भी जो कलर्स स्पीशीज जो शो करेंगे वो इसी तरीके के स्पीशीज कलर शो करेंगे। ऑल टुगेदर सब मिक्स करके तो वो न्यूट्रल हो जाता है, जो बेसिक कलर है वो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है। तो यूजुअली होता क्या है, सल्फेट जो है SO4 2-, ये काफ़ी अनायन है तो इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो दिस इज योर SO4 2-, सारे हैं SO4 2-, SO4 2- एंड SO4 2-। इसके बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं वॉइड। इस वॉइड में आपको मिलता है कॉपर H2O होल 4 2+। ऐसे ही आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, फेरिक सल्फेट FeSO4, उसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर, है ना? तो वो भी इसी वजह से होता है। जब आप FeSO4 जो है जिसमें से Fe+2 है, Fe+2 वेकेंट जगह है उसके पास, ये ल्यूइस एसिड की तरह काम करता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ल्यूइस एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होता है। Fe+2 जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अभी अब आप ये सोचो कि आयरन के पास सिर्फ +2 चार्ज है ना, और ये 6 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कहाँ रख रहा है इलेक्ट्रॉन? वेयर इज इट हैपनिंग? संपदा कलर इसकी वजह से ही आता है। आई टेल यू प्रॉपर फॉर्मूला जो होता है, अल्टीमेटली फॉर्म करता है ये FeSO4.7H2O। ओके, तो ये चलो 7 लिख लो, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 6 के साथ ही फॉर्म होता है। तो ये अल्टीमेटली बनाता कैसा है? FeH2O होल 6, बाहर एक सल्फेट, और एक जो बचा हुआ वाटर होता है वो ब्रैकेट के बाहर होता है। दिस इज योर ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन कलर होता है, और अगेन द रीजन इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ FeH2O होल 6 2+। इस कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस की वजह से इसका ग्रीन कलर होता है। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रही थी, हाँ, आयरन के पास यहाँ पे +2 चार्ज है, और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कहाँ रख रहा है? वेयर इज इट कीपिंग ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स? जगह भी चाहिए ना रखने के लिए। वेयर इज इट कीपिंग द इलेक्ट्रॉन्स? इतने सारा वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। यस निक, द गुड। अभी जो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? डी ऑर्बिटल, इसमें क्या प्रेजेंट है? खाली है। तो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं? डी के पास जा रहे हैं, क्योंकि डी सेम एनर्जी लेवल पे वेकेंट पड़ा हुआ है। समझ में आया? क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है तो पूछो। फोर्थ टाइप ऑफ ल्यूइस एसिड्स क्या हो सकता है आपके पास? एलिमेंट्स attached to more electronegative atom।
वो भी ल्यूइस एसिड की तरह काम कर सकते हैं थ्रू मल्टीपल बॉन्ड्स. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है, जैसे कार्बन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लो, सी डबल बॉन्ड ओ. ओके, मुझे पता, और यहाँ पे ओ एच माइनस है. मेरे को ये पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ऑक्सीजन क्या करता है कि वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेता है, तो बॉन्ड टूट जाता है. तो जैसे ही बॉन्ड टूट जाता है तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो इसकी जगह पे अपने इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट कर देता है? ये ओ एच माइनस. सो दिस कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये तो ओ माइनस हो गया, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन गए थे उसने ओ एच ने उसको दे दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड. समझ में आया? तो ऐसे भी स्पीशीज हैं जो ल्यूइस एसिड की तरह काम कर सकते हैं व्हेन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और दो एटम जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बीच में काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये हमने यही जो एग्जांपल लिया, इसको अगर हम फर्दर H प्लस आयन के साथ रिएक्शन कर देंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव अपने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है. तो ये हो गया OH और OH, ये फॉर्म हो गया H2CO3 विच इज योर कार्बोनिक एसिड. सुना होगा आपने कार्बोनिक एसिड का नाम. राइट डाउन दिस. ओके, तो ये तो सारे हो गए आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूइस एसिड्स. अब क्वेश्चंस इसमें से कैसे आते हैं? क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि आपको स्ट्रेंथ बताना है कि कौन अच्छा ल्यूइस एसिड है, कौन ऑर्डर बताओ ल्यूइस एसिड के स्ट्रेंथ का. ओके, सो फॉर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ ल्यूइस एसिड कैरेक्टर. आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो ल्यूइस एसिड कैरेक्टर is directly proportional to the charge density of metal cation, या फिर मेटल कटायन मतलब सेंट्रल एटम. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ में आएगा व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स. जैसे आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ ल्यूइस एसिड कैरेक्टर आपको निकालना है, और आपके पास ऑप्शन में है Rb प्लस, K प्लस, लिथियम प्लस एंड एल्यूमिनियम प्लस 3. सो इन सब में से सबसे अच्छा ल्यूइस एसिड कौन सा होगा? ऑफ कोर्स जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा. यस और नो? मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर इट विल बी ससेप्टेबल टू टेक इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब है कि वो उतना ही अच्छा क्या होगा? ल्यूइस एसिड. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होने वाला है आपके पास? लाइक दिस. एल्यूमिनियम का तो सबसे ज़्यादा होगा. अब रुबीडियम, पोटेशियम और लिथियम की अगर बात करें तो चार्ज डेंसिटी, ओके, चार्ज तो तीनों पे सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बट अब किस पे आ जाएगा? साइज पे. तो जितना ज़्यादा साइज कम होगा उतना ही उस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था. ओके, सो स्मॉलर द साइज, more will be चार्ज डेंसिटी. उतना ज़्यादा उस पर चार्ज डेंसिटी होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही उसका ल्यूइस एसिड कैरेक्टर होगा. अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज आई हैव
Pa plus 2, Ca plus 2, Mg plus 2 and aluminium plus 3. सी आपको सी ले लो, BCl3, AlCl3, SiCl4 और PCl5. बी और सी में आपको बताना है which will have the more Lewis acid character. Yes, Sampada, your answer is right. Everyone else also answer. Renuka, your answer is right. Snigdha is also correct. Dhruv is correct. Okay, good. So you got the idea now, है ना? इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज है, फिर साइज पे जाओगे, साइज सबसे छोटा मैग्नीशियम का होता है, फिर कैल्शियम का और फिर बेरियम का. यहाँ पे देखो साइज वगैरह नहीं, मतलब कटायंस के फॉर्म में नहीं है, तो आपको पता है कि क्लोरीन के ऊपर 3 माइनस चार्ज होता है, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखाना मैंने बताया है. तो इस पे हो जाएगा कितना, +3. एल्यूमिनियम पे भी कितना हो जाएगा, +3. देन सिलिकॉन के ऊपर हो जाएगा +4 और फॉस्फोरस के ऊपर हो जाएगा +5. तो अगर मुझे ऑर्डर लिखना है इसका तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा तो PCl5 का होगा क्योंकि +5 है. देन SiCl4 का होगा क्योंकि +4 है. अभी BCl3, AlCl3, तो दोनों के ऊपर +3 है. तो अब साइज पे जाओगे, तो साइज छोटा किसका होता है, बोरॉन का. तो पहले BCl3 आ जाएगा और फिर AlCl3. समझ में आया? ओके, एक और एग्जांपल करो लास्ट. इसका ऑर्डर बताओ. ओके, तो अभी यहाँ पे सब लोग काफ़ी बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं. दैट आई विल टेल यू क्या मिस्टेक कर रहे हो. अभी अभी एवरीथिंग इज न्यू टू यू, सो दैट इज परफेक्टली ओके. कार्बन विल हैव +4, एल्यूमिनियम विल हैव +3 एंड +4. ओके, अभी कार्बन के ऊपर +4 है, समझ में आ रहा है. बट क्या कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है? पहली बात तो ये बताओ. कार्बन ने अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो क्या कार्बन के पास जगह बची? कार्बन तो 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, आपको पता है. कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स. डज कार्बन हैव एनी स्पेस लेफ्ट? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2. 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2p पे 2 इलेक्ट्रॉन. एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो ये कार्बन के पास जो 3 अनपेयर्ड थे वो तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गए. क्या कुछ खाली जगह बचा है? इसके बाद तो सीधा 3s आता है. 3s का तो एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है. तो भाई कार्बन दिखने में तो लग रहा है कि ये ल्यूविस एसिड की तरह यहाँ पे काम कर सकता है, बट ये काम नहीं करता है. तो ये तो ऑर्डर में सबसे कम होगा.
तो CCl4 सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा SiCl4। एल्यूमिनियम और इसमें आप साइज देखोगे तो ऑफ कोर्स इधर आ जाएगा AlCl3 और फिर BCl3। इसके लिए लिख लो यहाँ पे, कैन नॉट act as Lewis acid as it does not have any vacant orbital। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो एक्सेप्शंस है, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ओके चलो, आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं।